School. बच्चों, इस क्रिया का प्रयोग आमतौर पर हम अपने घर में करते रहते हैं। एक बड़ा फेमस सा सेंटेंस बता रहे हैं हम आपको। बिटिया बोलती मम्मा से, मम्मा आप मेरे ऊपर क्या कुछ चिल्ला रही है? मैंने थोड़ी किया, उसने किया। अक्सर हम बोलते हैं। तो सबसे ये सेंटेंस हम ऐसे सिंगली बुलवा देते हैं। इसके साथ प्रिपोजिशन जो लगता है वो भी सुनना और लगा देना। मम्मा व्हाई आर यू येलिंग एट मी? मम्मा मेरे ऊपर क्या चिल्ला रही? सिंपल सेंटेंस, सेम टू सेम, किसी से क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। मम्मा व्हाई आर यू येलिंग एट मी? मम्मा आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा व्हाई आर यू येलिंग एट मी? मम्मा आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा व्हाई आर यू येलिंग एट मी? मम्मा आप मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा व्हाई आर यू येलिंग एट मी? मम्मा आप मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे तुम्हारा सा थोड़ा सा कमजोर है ना, उसका या थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है। मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? Because you all break my lipstick. Carry on. Give me 1 rupee. You are speaking Hindi. Give me right now. Borrow it from somebody. She is having some points in her brain. अच्छा, her brother is also having. अरे तुम बोलो ना यार। Mama, why are you eating? Sorry. इसलिए बोल रहे थे तुम। मम्मा why are you yelling at me? मम्मा आप मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मम्मा why are you yelling at me? मम्मा आप मेरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मम्मा why are you yelling at me? मम्मा मुझे क्यों डांटते हो? मम्मा why are you yelling at me? मम्मा पास कर दो, वो यहाँ आ जाएगा। मम्मा अभी मुझे चिल्लाना है। मम्मा why are you yelling at me? मम्मा मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? Mama, why are you yelling? Sorry. Mama, why are you yelling at me? Mama, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? Like cross line. They are really cousins. Both are cousins. बच्चों, what should be the second form of accompany? And do you know what should be the spelling of accompanied? Yes, And followed by IED. And what should be the third form of accompany? The third form of accompany should be accompanied. Chetan, did you accompany her? Yes, I accompanied her. क्या आपने उसका साथ दिया? हाँ, मैंने उसका साथ दिया। I'm awake. Did you accompany her? Yes, I accompanied her. क्या आपने उसका साथ दिया? हाँ, मैंने उसका साथ दिया. Did you accompany him? Yes, I accompanied him.
क्या आपने इसका साथ दिया? हाँ मैंने उसका साथ दिया. Did you accompany her? Yes, I accompanied her. क्या आपने उसका साथ दिया? हाँ मैंने इसका साथ दिया. Did you accompany us? Sorry. Him. Did you accompany him? Yes, I accompanied him. Her. Him. क्या आपने इसका साथ दिया? हाँ मैंने इसका साथ दिया. Did you accompany him? Yes, I accompanied him. Yes, I accompanied him. क्या आपने इसका साथ दिया? हाँ मैंने इसका साथ दिया. Did you accompany him? Yes, I accompanied him. क्या आपने इसका साथ दिया? Did you accompany her? Yes, I accompanied her. क्या आपने इसका साथ दिया? Did you accompany me? Accompany me? Yes, I accompanied. Sorry. Did you accompany me? Yes, I accompanied. Sorry. Yes, I accompanied you. क्या आपने मेरा साथ दिया? हाँ मैंने तुम्हारा साथ दिया. Should I erase the first one? Yes, you should erase the first one. Did you accompany his? Sorry. Sorry. Sir, ये second one नहीं लगेगा. 1 rupee. बात नहीं है. Did you accompany her? Have you written the first one? Yes. Yes, I accompanied him. Yes, I accompanied him. Sorry. Did you accompany? Sorry. Congratulations. Did you accompany her? Yes, I accompanied him. So sorry. Yes, I accompanied her. Bachcho, what was the last sentence? The last inactive sentence was she was lost in her class. She was lost in her. Fast. And what was the last idiom? The last idiom was we are so fast. Have you written the second one? Yes, sir. क्या आपने दूसरा वाला लिख लिया है? सॉरी, क्या आपने दूसरी वाली लिख ली? Should I erase? Yes, sir. You should erase. क्या मैं मिटा दूं? Yes, sir. बता दीजिए. बच्चों, the power is cut. Have I given Yes, you? sir. Yes, sir. Have I given you not yet? Yes, sir. Have I given you I smell a rat? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because they are together. Something is fishy. Have I given you round the corner? No, sir. Just a minute. Have I given you are you nuts? Yes, sir. Have I given you it is said? Yes, sir. Yes, sir.
You are fired. No, sir. गाइस, आमतौर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे फायर शब्द देखते ही इस वाक्य में आग की has anybody ever heard this sentence? Raise the hand. What is the meaning? कंपनी का हिंदी यहाँ हमने साथ लिखा था, कई बार सुना होगा, अरे इसकी कंपनी सही नहीं है यार, तो गलत कंपनी में पड़ गया इसलिए। फर्स्ट राउंड, स्पीक एज इट इज। You are fired, तुम्हें निकाल दिया उसने। You are fired, तुम्हें निकाला जाता है। You are fired, तुम्हें निकाल दिया गया। You are fired, तुम्हें निकाला जाता है। You are fired, तुम्हें निकाल दिया गया है। You are fired, तुम्हें निकाला जाता है। You are fired, तुम्हें निकाल दिया गया है। You are fired, तुम्हें निकाला जाता है। You are fired, तुम्हें निकाला जाता है। You are fired, तुम्हें निकाल दिया गया। बच्चों, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट, और आखिरी में कुछ अगर तुम्हें लगाना हो पर्टिकुलर सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए, She is fired in her post. हाँ, दिस इज रॉन्ग प्रपोजिशन। She is fired. Sorry. You take your own subject. Raghav is fired from T&L company. Don't say company. T&L. मारुति के साथ कार लगाना अच्छा नहीं माना जाता। मारुति, everybody understands. Maruti is a company of cars. T&L. Complete the process. राघव को T&L कंपनी से निकाल दिया गया है। He is fired because of his poor performance. Yes. उसकी खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे निकाल दिया गया है। They are fired because of their behavior. Yes. उनकी व्यवहार की वजह से निकाला जाता है। She is fired because she is fired in her bad habits. You should listen carefully. After some time, She is fired. you should listen carefully. After some time, you can wake up. Who is ready? Tanvi is fired because of
because she is not punctual. Nice. उससे निकाला जाता है क्योंकि वह Right. For Hindi. 3 rupees. तन्वी को 1 more rupee. Give me 1 more rupee. I don't have change. You do not need change. You need to speak English. That's all. तन्वी को निकाला जाता है क्योंकि वह टाइम की पक्की नहीं है। Rani is fired because of her laziness. रानी को उसके laziness के लिए निकाला जाता है। Please give her 1 rupee coin. What is the meaning of hill? The meaning of hill should be pahad. No, pahad means mountain. वहीं रखते हैं, उठने की देर में। Saurabh is fired because he is not submitting his project in time. सौरभ को निकाल दिया गया है क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट समय पर जमा नहीं कर रहा है। I'm just asking one question. From where is he fired? L&T company. He is fired from L&T company. Sorry, L&T. He is fired from L&T. उसे कहाँ से निकाल दिया? उसे L&T से निकाल दिया। Okay, you were making one sentence. C are fired because C is fired because of What should be the verb for Behna? the verb for Behna should be Close. What should be the second form of blow? the second form of blow should be blow. What should be the third form of blow? The third form of blow should be blow. What should be the spelling? The spelling should be बच्चे ये पहला शब्द हाथ उठाना किसी ने अपने जीवन में कहीं लिखा हुआ देखा हो? किसी ने कभी ट्रक देखा और ट्रक के पीछे पीछे चले? क्योंकि ट्रक अक्सर साइड नहीं देते हैं तो अपने को मजबूरी में पीछे पीछे हॉर्न बजाते हुए चलना पड़ता। मुझे लगता है हर ट्रक के पीछे ही लिखा होता है एवरी। अब मन में एक सवाल आया कि ब्लो मतलब तो हवा का बहना होता है, फिर ब्लो हॉर्न क्यों लिखा है या हॉर्न प्लीज लिखा रहता है किसी किसी का? तो उसके पीछे थोड़ा सा साइंस को आपको समझना होगा। ये जितने भी हॉर्न है भले वो बटन दबाने से बजते हैं, चाहे तो हमारी गाड़ी का हो या किसी भी गाड़ी का, लेकिन साइंस के हिसाब से सारे हॉर्न एयर प्रेशर टेक्नोलॉजी पर ही काम है।
अगर कुछ समय पहले तुमने ध्यान दिया होगा, दूध वाला अगर साइकिल पे आता था तो उसकी साइकिल पे लगा रहता था, वो ऐसे ऐसे, ठीक है ना? तो हवा के कारण वो बचता था। वही सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक रूप से हॉर्न के लिए भी अप्लाई किया गया है। अगर थोड़ा और ध्यान दिया होगा तो जबलपुर के कुछ लड़के जो बहुत शौकीन टाइप के होते हैं, उनकी टू व्हीलर में प्रेशर हॉर्न कहीं देखे, ऐसे साइड में दो दो तीन तीन लगे रहते, खूब जम के आवाज करते, इरिटेशन होता है। बल्देबाग से रानीताल की तरफ जाओगे तो एक आध विज्ञापन कहीं लिखा देखने को मिल जाएगा, हॉर्न बदलवाए फलानी दुकान से, प्रेशर हॉर्न लगवाए। हाँ, गोहलपुर है वो। तो उसमें भी जो बहुत तेज हॉर्न वाले होते हैं, हालांकि अब तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध काफी स्ट्रिक्ट होगी, उसमें भी पीछे ऐसे बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, दो दो तीन तीन, तो एयर प्रेशर से ही काम करते हैं, इसलिए लोग एक प्रैक्टिस दे देते हैं ताकि ये वर्ब जब किसी के ऊपर आए तो वो उसको कैसे बनाएगा। डिड द विंड ब्लो, यस में आंसर देना, तो सेकंड यस द विंड ब्लू, क्या हवा बही। हाँ हवा बही। अब बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस नहीं है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट है आपकी। सेम क्वेश्चन, डिड द विंड ब्लू, Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। Did the wind blow? यस द विंड ब्लू, क्या हवा बही? हाँ हवा बही। डिड द विंड ब्लू, Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। मेरी सुनी? हाँ हवा बही। हाँ हवा बही। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? Sorry. हाँ हवा भारी। क्या हवा बही? हाँ हवा भारी। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा भारी? Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। Did the wind blow? Yes, the wind blew. क्या हवा बही? हाँ हवा बही। बच्चों, which chapter does this sentence belong? Very nice. कैसे पहचाना दिस इज प्रेजेंट सिंपल? वर्ब के साथ यस, वर्ब के साथ एस लगाओ। What is the subject of this sentence? आई इज द High. आई Yes. High winds is the total subject. What is the helping verb? There is. What is blow? नहीं वाह What is on? हाँ
What is high? High is High. adjective. What is hill? Hill is a noun. वो तो ये यहाँ लिखे हुए हैं। और जो नाउन की विशेषता बतला रहा है वो विशेषण, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण। कैसी हिल्स? हाई हिल्स, ऊंची पहाड़ी या पहाड़ियां। अब हिंदी अक्षर से अनुवाद क्या निकाला बच्चों? अब ये तो हो गया अक्षर से अनुवाद। इसकी हिंदी गेसिंग करने के लिए हम तुम्हें एक हिंट देते हैं। एक गुटके के विज्ञापन, पाउच आते हैं गुटके वाले पाउच, उनमें से किसी एक के विज्ञापन में इसका प्रयोग है। बहुत वैसा नहीं है कि वो बहुत प्रचलित। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही कुछ। जो वाकई माणिकचंद, माणिकचंद गुटके की कंपनी के नाम माणिकचंद। अच्छे विचार अच्छी जवाब नहीं आते। ऐसा विज्ञापन तो नहीं देखते हैं। अच्छे विचार अच्छी कभी ध्यान नहीं दिया। ऊंची लोग, ऊंची पसंद। माणिकचंद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बदल बड़े बड़े तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़े लोग बड़ी बड़ी बात। Here we go. High winds blow on high hills. बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। Hills नहीं। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। High winds blow on high hills. बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। बच्चों एक जगह पे तुम लोगों को मैडम ने ये पर्सन लिखा है। Yes, sir. जेंडर की हेडिंग लिखी हुई है जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा, खाली छूटा हुआ है। उसके पहले नंबर है, नंबर में पेन, पेन, माउस, माइस ये सब लिखा हुआ है। उसके पहले शुड,
Have you written the idiom? Yes, sir. We have written the idiom. Should I use? Yes, sir, you should use. बच्चों 2 मिनट रजिस्टर्स बंद कर दो अपने क्लोज योर नोटबुक. Can anybody tell me without watching it? पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण वाला पर्सन. हाँ, ये व्याकरण वाला है. और कितने होते हैं? 3. कौन कौन से? ये हमारी हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा सी भिन्नता है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले पे. तो हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर? There are 3 persons. विच आर दे? There are first person, second person, third person. बच्चों, this is little boring chapter, but it is important. It is very much important. तो इसको तुम्हारे जहन में अच्छे से बिठाने के लिए दिमाग में हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फनी चीजें अभी समझाने के लिए डालेंगे, जिससे तुम्हें हंसी आएगी, मजा आएगा, और इसी बहाने ये तुम्हारे जहन में अच्छे से बैठ जाएगा. तो उसको दोनों तरह से लेना. उसको एंजॉय तो करना ही, जहां पे भी हंसी की बात आए एंजॉय करना, लेकिन उसको अच्छे से समझना भी. और पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई चीज मिस हो जाए तुमसे, वीडियो देखना. उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट तो तुम पूछना जरूर, संकोच मत करना. तो एक बार हम ऐसे ही अभ्यास के लिए फिर से पूछते हैं. हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? There are 3 persons. विच आर दे? There are first person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन. कैन यू टेल मी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत I और D आते हैं. आई और D आते हैं. बी. बच्चों, वैसे तो हमने हमेशा अनुवाद का विरोध किया है, लेकिन कभी कभी समझाने की दृष्टि से मुझे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ. उसका कारण अभी तुम्हें समझ में आएगा. फर्स्ट पर्सन किससे कहते हो? एक परिभाषा बता सकते हो? फर्स्ट पर्सन जिसमें खुद की बात हाँ, इकट्ठे. तुम जवाब कुछ भी दो, बिना डरे दो. जवाब सही हो गलत हो, नो प्रॉब्लम. कोई भी चीज जिसके बारे में एक बात की जा रही है, जो बात कर रहा है, ये ज्यादा सही है. जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन. अब बताओ सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? सेकंड पर्सन में he, she, it आता है. फिर से सोच के बताओ. सेकंड पर्सन में he, she आता है. तुमने एक निगाह डाली अभी, लिखा हुआ तो है तुम्हारे पास पूरा, लेकिन हमने तुमसे बोला कि रजिस्टर बंद कर दो. तो सेकंड पर्सन में केवल you आता है. यू आता है. अभी बताओ बच्चों, इस क्लास में फर्स्ट पर्सन कौन है? हाँ, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. और सेकंड पर्सन कौन है? आप सब लोग सेकंड पर्सन. अब हम इसी प्रश्न को फिर से पूछते हैं.
Who is the first person in this class? You are the first person in this class. No, but you is the second person. No, I was just making it interesting and funny. आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम उसको थोड़ी सी चीटिंग के वे में ले लेंगे, ये याद रहेगा तुम्हें। तो I am the first person in this class and you are the second person in this class. अब बताओ तीसरे नंबर पे कौन सा है? नहीं, पहले बताओ थर्ड पर्सन। अब बताओ थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? He, she, it, they, and so on. अब एक लाइन में परिभाषा तय करते हैं। थर्ड पर्सन किससे कहते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा सुन के। आई एम रियली हैप्पी टू लिसन। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज टॉकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, हु इज लिसनिंग इज द सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अभी यहाँ बताओ कि हमारे बीच में थर्ड पर्सन कौन है? हम मैडम की बात थोड़ी कर रहे हैं। यस, यही है थर्ड पर्सन, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। या एक और उत्तर हो सकता है कि अभी हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन व्याकरण है, ग्रामर इज थर्ड पर्सन, क्योंकि हम काय की बात कर रहे हैं? ग्रामर की बात कर रहे हैं। या तीसरा है इंग्लिश। अभी हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? विषय हमारा है इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड पर्सन में जरूरी नहीं। तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा था, इससे हमें समझाने का मौका मिला कि थर्ड पर्सन का मतलब कोई पर्सन ही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्सन का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति। He is a good person, she is a good person. She के लिए भी पर्सन यूज कर सकते हैं आप। She is a good person. जरूरी नहीं है कि लेडी शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि पर्सन से ही पर्सनालिटी शब्द बना है। तो हर पर्सनालिटी भी हो सकता है, हिज पर्सनालिटी भी हो सकता है, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, उसको इस तरह से हर पर्सनालिटी इज गुड, हिज पर्सनालिटी इज गुड। तो पर्सन मतलब कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु। अब यहाँ पे हम हिंदी लिख रहे हैं। इतने दिन हो गए बच्चों, बहुत दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हो। हिंदी हमने कभी ऐसे लिखवाया नहीं, और ये भी कोई उस रूप में नहीं लिखवा रहे हैं। ये सब तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अब हमारे अगले सवाल का जवाब देना हम लिखते जाएंगे और तुमसे पूछते जाएंगे। बताओ, ही इज ए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? ही एक वचन है कि बहुवचन? शी इज ए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? शी एक वचन है कि बहुवचन? It is a singular number or plural number? It एक वचन है कि बहुवचन? They is a singular number or plural number? They एक वचन है कि बहुवचन? They बहुवचन है। इसका प्रयोग हमेशा एक से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है। ही फिर से पूछते हैं, ही इज अ सिंगुलर और प्लूरल? इसका प्रयोग हमेशा एक
एक पुरुष के लिए किया जाता है। तुम लोग को अगर याद हो, फर्स्ट स्पीच में तुम लोग ने काफी गलतियां की थी। पिताजी के लिए शी लगाया था, मम्मी के लिए ही लगाया था, वो सब रिकॉर्डेड है। और हमने बोला था इस गलती से बहुत कम लोग बच पाएंगे, लेकिन ये गलती आपकी सेकंड स्पीच में काफी कम हो जाएगी, थर्ड स्पीच में और कम हो जाएगी, फोर्थ में ना के बराबर है। तुमने बेटा बोला था कि यू वांट टू डिलीवर योर थर्ड स्पीच टुडे है, लेकिन आज समय हो गया है तो आज नहीं लेते। ये एक महत्वपूर्ण चीज सामने आ गई है, यू कैन डिलीवर योर स्पीच टुमारो। फिर से आगे बढ़ते हैं। शी इज अ सिंगुलर नंबर और प्लूरल? ये किसके लिए प्रयोग होता है हमेशा? एक स्त्री के लिए। इट इज अ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर? इट इज अ सिंगुलर नंबर। ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये 5 चीजों के लिए प्रयोग होता है। कौन कौन सी? अभी मैं बताता हूँ कुछ क्षणों में बस। 5 थिंग्स। Day is a singular number or plural number? Day is a plural number. Day का प्रयोग हमेशा एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन दे का हिंदी क्या होता है? वे। और इस वे शब्द का प्रयोग हम लोग सम्मान के लिए करते हैं हिंदी में। हिंदी में किसी को सम्मान देने के लिए, जैसे वे मेरे पापा जी, वे मेरे गुरु हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तल्ख उदाहरण दे रहे हैं। तल्ख शब्द उर्दू का है जिसका अर्थ होता है तीखा, यानी थोड़ा सा बुरा सा लग सकता है, तीखा लगेगा। तल्ख उदाहरण दे रहे हैं। दे का प्रयोग आपको संभल के करना होगा आगे से। बहुत कैसे हम उदाहरण दे देते हैं, ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई या बहन के स्कूल में गए, आपको प्रिंसिपल साहब से मिलना था। तो प्रिंसिपल वहां नेम प्लेट लगी हुई थी, आप रूम के बाहर पहुंचे, चपरासी खड़ा हुआ था। आपने बोला आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, या आपने हिंदी में बोला मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलना, आई हैव टू मीट द प्रिंसिपल। हिंदी में बोला मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, कहाँ है प्रिंसिपल साहब? तो उसने बोला वे तो राउंड पे गए हैं, या वे तो मीटिंग में हैं, आप 5 मिनट इंतजार कर लीजिए, बैठिए। अब ये हिंदी में बातचीत हो गई। मान लीजिए आपने इंग्लिश में पूछा वेयर इज द प्रिंसिपल। अब चपरासी कम पढ़ा लिखा था इसलिए तो चपरासी था, लेकिन चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में काफी दिनों से काम कर रहा था तो इसको इंग्लिश बोलने का थोड़ा सा शौक था। तो उसने फट से जवाब दिया दे वेंट टू हैव ए राउंड, या दे आर इन द मीटिंग, प्लीज सिट हियर एंड वेट फॉर सम टाइम। अब चपरासी तो ऐसे ही बोलेगा वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब प्रिंसिपल किसी स्कूल में कितने होते हैं? और उसने क्या प्रयोग कर दिया? क्योंकि वो सम्मान देना चाहता था। यहाँ गलती हो गई लेकिन अनर्थ नहीं हुआ। ध्यान देना बेटा, गलती जरूर हुई लेकिन अनर्थ नहीं हुआ, अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ। अनर्थ कब हो सकता है देखिएगा। कोई आपके घर पहुंचा, नॉक किया या डोर बेल बजाई, टिंग टॉन्ग, आपने दरवाजा खोला तो अंकल जी थे, आपने नमस्ते किया, आइए अंकल। उन्होंने अंदर आ, वो जल्दी में थे, उन्होंने पूछा नहीं नहीं बेटा अभी मैं अंदर नहीं आऊंगा, पापा जी कहाँ है? तो आपने बोला वे तो नहा रहे हैं, या वे तो बाथरूम में हैं, या वे पूजा कर रहे हैं, या वे तैयार हो रहे हैं, कुछ भी।
नो प्रॉब्लम, हिंदी। लेकिन अगर उन्होंने पूछा वेयर इज पापा जी, आपने बोला दे आर इनसाइड। कल का उदाहरण है, आपने जैसे ही बोला दे आर इनसाइड, आप अपने आप को एक भद्दी सी गाली दे रहे हो, और इस गाली का नाम है हरामी। पिताजी एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सम्मान देने के चक्कर में दे बोल दिया, एक से अधिक हो गए तो गाली होगी। सावधानी से प्रयोग करना। हम नाम नहीं बताएंगे, कुछ लोगों ने अपनी फर्स्ट स्पीच में, इंट्रो स्पीच में गड़बड़ किया था, और हम उसको आराम से सुन, आपको तो समझ में नहीं आया होगा अधिकतर लोगों को, लेकिन हम आराम से धीमे से अंदर ही अंदर मुस्कुरा के हम नोट बस करते जा रहे हैं कि किस किसने किया, लेकिन हमने बताया नहीं, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आज के बाद पापा जी के लिए दे का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। He is inside, yeah, he is worshipping, yeah, he is taking shower, yeah, he is getting ready, okay, सावधानी रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल चीज, थर्ड पर्सन में बच्चों जितनी भी ये चीजें लिखी हुई हैं, ये थर्ड पर्सन होने के साथ साथ प्रोनाउन भी होती है, और आज चूंकि हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो आज के पहले हमने हल्का हल्का सा तुम लोगों से प्रयोग शुरू करवा दिया था, लेकिन अभी तुम उसके आदी नहीं हुए। अभी तुम सीधे नाउन, मतलब जैसे उसने प्रश्न पूछा, जैसे बच्चों के साथ होता है ना, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज गुड्डू, व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज पप्पू, पूरा पूरा बोलता है बच्चा। लेकिन अब आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे हिज नेम इज, या हर नेम इज, ऐसा, ठीक है। जैसे उसने किसी का नाम रखा, तो आप सीधे ही रखो या शी रखो आंसर। तो ये सब प्रोनाउन होते हैं, यानी नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और इनका प्रयोग दूसरी बार में करना चाहिए वाक्य में। हम उदाहरण देख के बता दे रहे हैं, काल्पनिक उदाहरण। दिस इज माय ब्रदर, दिस इज राहुल, ही इज माय ब्रदर। दूसरे, दिस इज रीना, शी इज माय सिस्टर। दूसरी बार में प्रयोग। इसके लिए हमें तुम्हें ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये सिंपल दे देते, दिस इज पेन, इट इज ब्लैक। दिस इज ऑल्सो पेन, इट इज रेड। एक वस्तु होना चाहिए, याद रखिए। हाँ, 5 चीजों के लिए बोला था, अब मैं 5 चीजें बता देता हूँ। पहली तो हो गई वस्तु, एक वस्तु के लिए एक होना चाहिए, सिंगुलर नंबर, उसके लिए इट का प्रयोग होता है। दूसरा एनिमल के लिए, लेकिन एक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पक्षी के लिए, लेकिन एक होना चाहिए, बर्ड। चौथा एक नवजात शिशु के लिए, नवजात शिशु अभी अभी जो पैदा हुआ है या छोटा सा है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अभी हम और थोड़ा डिटेल में अगली बार बताते हैं थोड़ी देर में। और पांचवा जो है छक्का जो होते हैं ना, वृहन्नला, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जेंडर, ठीक है, लेकिन एक होना चाहिए तब। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट का प्रयोग हमें ज्यादा तो हमें सिखाने की इसलिए जरूरत नहीं है प्रोनाउन के लिए, क्योंकि मैंने तो 6वीं क्लास से रटना शुरू किया था और बहुत सारी क्लास तक रटता रहा। काऊ का निबंध आप सबने कभी ना कभी रटा होगा।
पहली लाइन बस होती थी काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। काउ एक पालतू जानवर है। अच्छा हाँ, बात डोमेस्टिक की निकली है तो एक छोटी सी जानकारी। डोमेस्टिक का मतलब पालतू होता है, आप जानते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। लेकिन डोमेस्टिक का एक अर्थ और भी होता है, घरेलू। डोमेस्टिक फ्लाइट से जा रहे हैं आप कि इंटरनेशनल फ्लाइट से जा रहे हैं? तो इंडिया से इंडिया में कहीं पे भी जाना है आपको हवाई मार्ग से, तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेंगे। लेकिन आपको अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे। ठीक है। तो पहली लाइन होती थी काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, या हमारे समय में एक और होता था काउ इज ए 4 फुटेड एनिमल। हम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है, बोलिएगा द काउ इज ए 4 फुटेड एनिमल। काऊ एक चौपाया जानवर है। आजकल जो हो रहा है नए बच्चों में, काऊ इज ए पैट एनिमल। तो पैट का वास्तविक अर्थ होता है पालतू, डोमेस्टिक का भी वही अर्थ होता है। ठीक है। एंड डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू काम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे हाउस होल्ड वर्क ज्यादा प्रयोग में आता है। हाउस होल्ड चोर्स आप बोलने लग गए, आप में से कुछ लोगों की जबान पे आ गए। डोमेस्टिक चोर्स बोल सकते हैं। अब दे का प्रयोग तो अभी हमने बताया। अब एक छोटी सी बात और नोट कीजिएगा, दे का प्रयोग आप व्यक्तियों के लिए करते आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन आज के बाद आप दे का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी करें, हिचकिचाएं नहीं। वस्तुओं के लिए करें, बहुत आसानी होगी आपको सेंटेंस बनाने में। जैसे हम उदाहरण दे दे रहे हैं, these are chairs। these are chairs, पहली लाइन में these दे नहीं आया। they are plastic molded chairs। ये कुर्सियां हैं, ये प्लास्टिक की बनी कुर्सियां हैं। अब है तो नहीं दूसरा उदाहरण जो हम दे रहे हैं, लेकिन काल्पनिक मान लीजिए। those are also chairs, those are also chairs, but they are wooden chairs, but they are wooden chairs। वे भी कुर्सियां हैं, लेकिन वे लकड़ी की कुर्सियां। तो हर बार हम प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, पहली लाइन में नहीं कर रहे हैं, दूसरी लाइन में कर रहे हैं। तो आप कभी किसी का परिचय दें तो इसी तरह से करें कि दिस इज राहुल, ही इज माय ब्रदर, या दिस इज माय ब्रदर, ही इज राहुल। दोनों में से कुछ भी हो, ही सेकेंड नंबर पे आना चाहिए। प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। तो इनका प्रयोग अभी हम तुम्हारी जुबान पे रखवाना शुरू करेंगे सेंटेंसेस के दौरान। पांच चीजें बताई हमने बच्चों। पहली क्या बताई? इट के लिए वस्तु बताई। तो वस्तु का एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण दे देते हैं, काऊ का उदाहरण हो गया एनिमल, दैट इज पिकॉक। है नहीं वहां, ऐसी काल्पनिक, दैट इज पिकॉक। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल इट। ठीक है। तीसरा क्या बताया था? न्यू बॉर्न बेबी। अक्सर होता यह है कि आपकी भाभी हॉस्पिटल में है, बच्चा होने वाला है, आप दूध दलिया वगैरह कुछ लेके पहुंचे। ऑपरेशन में थिएटर में लाल बल्ब जल रहा था, मम्मी बाहर खड़ी थी और एक आधा रिश्तेदार खड़ा था बाहर। इतने में लाल बल्ब बंद हुआ, नर्स लेकर आई बच्चे को गोद में, तो आपके मुंह से एकदम से निकला, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है, तभी मम्मी ने पूछा या नर्स ने खुद बताया। अक्सर मम्मी वैसे पूछ लेती, कौन लड़का है लड़की है? तो उसके बाद जब नर्स ने बताया, बधाई हो, लड़की हुई है। ठीक है। तो जैसे नर्स ने बताया लड़की हुई है,
तो आप क्या बोलेंगे? शी इज सो ब्यूटीफुल। अब आपको पता चल गया तो आप बोल सकते हैं शी इज सो ब्यूटीफुल। कपड़े में लिपटा हुआ है बच्चा है, एकदम से देखते साथ, चेहरा देखते साथ आपके मुंह से निकला इट्स सो ब्यूटीफुल, या इट रिजेंबल्स टू भैया, इट रिजेंबल्स टू भाभी। बोलना इट रिजेंबल्स टू भैया, ये तो भैया पे गया है। ये यानी बच्चा नहीं, पता नहीं। फिर जैसे ही पता चलता, एक ये काल्पनिक उदाहरण है कि आप, और कई बार ऐसा होता, ध्यान दिया है 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं, कई घरों में ऐसा ही परंपरा रहती है कि मुंडन नहीं कराते, मालूम है ना, बाल नहीं कटवाते। 3 साल में वो अपने वहां पे जहाँ पे वो मानते हैं वहां पे लेके जाते हैं बच्चे, फिर बाल कटते। तो लड़का है मान लो, लेकिन उसके 3 साल में बाल इतने बड़े बड़े हो गए, अब वो बिखरे रहते हैं, तो आंख पे आते हैं तो क्या करती है मम्मी, छोटी बांध देनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि दादी ने बड़े प्यार से एक झबला सिला। झबला एक ऐसा वस्त्र है जो चाहे लड़का हो या लड़की दोनों को पहना देते, ठीक है। और नानी ने उसको चांदी की पायल दी है। अब कुछ तो देना होता है बच्चे को, तो क्या दें, कुछ अच्छा सा दें जो महंगा सा भी हो, तो चांदी की पायल दे दी जाती है। अच्छा लगता है, बच्चे पहने रहते, घुंघरू से बंधे रहते और घूमते रहते हैं बच्चे को, पता चलता रहता है कि बेट कहाँ पे है, यहाँ है, वहाँ है, छन 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 छन। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा समझ में नहीं आता है कि लड़का है कि लड़की। अचानक एक बच्चा अंदर आता है, आपके मुंह से निकलता है इट्स ब्यूटीफुल। फिर बाद में आप पूछते हैं लड़का है कि लड़की है, तो पता चलता है लड़का है, लग रहा है लड़की जैसा। छोटे से बच्चे बहुत प्यारे होते, कुछ बच्चे तो पता ही नहीं चलता है कि लड़का है लड़की, तो उस समय आपके मुंह से निकला इट्स सो ब्यूटीफुल, इट का प्रयोग। और आखिरी क्या बताया था? हाँ, गे के लिए इसका प्रयोग। वैसे गे आजकल पुरुषों के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन उनको भी गे बोल सकते हैं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इंग्लिश में, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारा वर्गीकरण, लेस्बियन फीमेल को कहते हैं, अपन चर्चा कर चुके हैं जब गाइस और गर्ल्स किया था। मतलब एक फीमेल जो फीमेल को ही पसंद करती है उसको लेस्बियन कहते हैं, और एक मेल जो मेल को ही पसंद करता है उसे गे कहते हैं। तो यहाँ हम इस विराम देते हैं, लेकिन इतना पूछने के बाद कि बताइए यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? But in English we use that verb are. So Sir, sometimes it is singular and तो एक शब्द अगर लिखना है तो क्या लिखना? जैसे यहाँ पे एक वचन लिख दिया, यहाँ बहुवचन। एक बहु इंग्लिश का कोई एक शब्द बताओ जो लिख दे। चलो तुमने बता पा रहे तो हम लिख दें। कई बेंच पे फट से बता देते हैं बच्चे कि सर ये दोनों होता है, तो हम उनसे पूछते हैं हाउ कैन यू से, तो सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ जो अच्छे एक्टिव रहते हैं वो फट से बताते हैं सर आपने खुद ही तो लिखा है, तो तुम लोग आप आप लोग।
तो फिर अब उसको स्वीकार कर लेते हैं, आप या आप लोग दोनों होता है। तो यू दोनों होता है एक वचन और बहुवचन। अब आखिरी क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म करते हैं। वी सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। ये प्लूरल है। और आई? अब हम तुम लोग को जोड़ कर झटका देने जा रहे हैं। आई जो है प्लूरल बोथ है। मैंने हाँ, जानने के लिए देखते रहिए क्योंकि सास भी टू बी कंटिन्यू। आई ने टू बी अंग्रेजों को बहुत परेशान किया एक वचन बहुवचन के चक्कर में। हम आपको 22.5 घंटे परेशान करेंगे, कल बता देंगे। आप परेशान होइए, सोचिए आई एक वचन बहुवचन दोनों कैसे, कल बताते हैं कैसे। Thank you, sir.